Hello everyone, I am Shanky Kothari, faculty at Kotal Academy. In this video, I'll put up the basics about the examination process of UPSC, what are the subjects, और एक बार UPSC सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन सी सर्विसेज आपके लिए ओपन हो जाती हैं तथा क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए और इसमें आपकी कॉटल एकेडमी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कॉटल एकेडमी आपकी कैसे मदद कर सकता है। इससे पहले कि मैं इन सब डिटेल्स पे जाऊं, आई जस्ट वांट टू टॉक ये सिविल सर्विसेज होता क्या है, जिसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो एज़ यू ऑल नो, ये जो कोविड क्राइसिस है, इस कोविड क्राइसिस के दौरान यू माइट हैव सीन ऑन ग्राउंड द रियल अथॉरिटीज़ वर्किंग लाइक कलेक्टर, एसपी, एसएसपी. All these people are civil servants. Most of the collectors, like around in Madhya Pradesh, if we say, are officers of Indian Administrative Services. Most of the SPs, IGs we see are officers of Indian Police Services. These IAS, IPS and a host of services के अलावा और कई सारी services are getting appointment, are getting their personals recruited through the exam of UPSC civil services. So if you also have this fire in mind to be on ground, to serve people, have requisite authority, use it for the welfare of society, then yes, you should take a attempt at this exam, civil services, conducted by Union Public Service Commission. So moving straight to our this video's topic, that is what is the eligibility, what are the services, the subjects for UPSC examination. The minimum educational qualification required to appear in UPSC examination is a graduate degree. Now, graduate degree is to be from a recognized Indian university. You may have done your graduation from open university like IGNOU. अगर IGNOU जैसी open university से भी आपने graduation करा है, चूँकि वो एक भारत सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है. इफ़ इट इज़ सो, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड बी अ ग्रेजुएट. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पास करें और फिर ही आप इस एग्ज़ाम में बैठें. एज you are in your final year, this exam takes place somewhere around May or June, and finally you get your provisional degree at least around October, September. इस केस में भी आप मई जून में एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू कॉल आएगा या मेंस आप देंगे तब तक आपके हाथ में एक प्रोविजनल डिग्री आ जाती है कि आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पास कर लिया है. तो those who have completed their graduation and those who are in their final year of the examination are eligible to appear in Union Public Service Commission Civil Services. Apart from graduation, कुछ courses ऐसे हैं which are considered equivalent to graduation, जैसे chartered accountancy और CS. अगर if you have finally cleared these courses and you have not done your graduation, then also you are eligible to appear in UPSC Civil Services. So as you might be able to see on your screens, these are the qualification to appear in UPSC. A degree from recognized university, and those appearing in final year are also eligible, as well as distance education. चूँकि मैंने इग्नू का बता ही दिया है. एट द सेम टाइम डिस्टेंस एजुकेशन मतलब अगर पत्राचार के माध्यम से भी आपने आपका ग्रेजुएशन करा है तब भी आप यूपीएससी में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होंगे. व्हाट इज़ द एज क्वालिफिकेशन? सेकेंड पॉइंट,
So the minimum age required is 21 years and the cut-off date that is taken into consideration is 1st August. मतलब 1 अगस्त तक अगर आप उस साल 21 वर्ष की आयु के हैं तो you can appear in UPSC, not less than 21 years. Remember the cut-off date is not 1st January but 1st August is taken as cut-off date. तीसरी क्राइटेरिया यूपीएससी में अपीयर होने का कि आप इसे कितनी बार दे सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी एंड एसटी, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज. जैसे फॉर जनरल कैटेगरी दे कैन गिव इट for 6 times, they can give it 6 times, they can have 6 attempts till the age of 32 years. मतलब 32 साल के बाद नहीं दे सकते, तथा 6 अटेम्प्ट से ज़्यादा यू कैन नॉट अपीयर. एक अटेम्प्ट कब काउंट होता है? व्हेन यू सिट इन द प्रीलिम्स एग्जाम एंड यू साइन द अटेंडेंस शीट, दैट इज़ कंसिडर्ड एज 1 अटेम्प्ट. मेंस दिया या ना दिया इससे फ़र्क नहीं पड़ता. You are sitting in prelims and signing the attendance sheet is counted as an attempt. OBC के लिए क्या क्राइटेरिया है? 9 attempts are available till 35 years of age. SC and ST के लिए unlimited attempts are available till 37 years of age. For physically handicapped, 9 attempts are available and the age limit is 42 years. Moving forward, the process of the exam. The process of exam is conducted in 3 stages. The first stage is preliminary exam, जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. एक बार आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं देन यू अपीयर इन मेंस. मेंस इज़ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव अपनी थॉट प्रोसेस लिखनी होती है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स लिखने होते हैं, डिस्क्राइब करने होते हैं. और द लास्ट स्टेज इज़ इंटरव्यू. तो प्रीलिम्स अगर क्लियर करते हैं तो मेंस क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू. मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर करा, उसके बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली इन इंटरव्यू, यू हैव टू अगेन अपीयर इन द नेक्स्ट ईयर्स प्रीलिम्स. मतलब हर बार प्रक्रिया 0 से शुरू होगी. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको एक सर्विस यूपीएससी की अलॉकेट कर दी जाती है. क्या सर्विसेज हैं हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करते हैं. प्रीलिम्स इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 इज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, जिसे हम आम भाषा में अपने जनरल नॉलेज समझ सकते हैं. It consists of topics like current affairs, science and technology, environment, Indian constitution, economy, history, geography, Indian society, XYZ. So it is basically a current affairs, general knowledge and some basic understanding of the current happenings is asked in this paper. दिस पेपर ऑल्सो कैरीज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3. 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं. इफ़ यू डू इट करेक्टली यू गेट 2 marks. इफ़ यू अटेम्प्ट इट इनकरेक्टली यू गेट -2/3 marks. देर आर नो marks deducted for unattempted question. Then second paper is CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एज दे से क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा ये होते हैं. इट इज़ जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. इसमें आपको मिनिमम 33% लाने होते हैं मार्क्स. अगर 33% से कम लेकर आएंगे तो यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. 33% से ज़्यादा लेकर आएंगे देन यू विल बी एलिजिबल टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर मेरिट. मतलब एक बार आपने इस पेपर 2 को क्वालिफाई कर लिया तभी आपका पेपर 1 का मेरिट कंसिडर करा जाएगा. पेपर 1 जो हमने अभी देखा जनरल स्टडीज़. जनरल स्टडीज़ में जो जनरल नॉलेज के सवाल थे, आप जितने ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन सही करेंगे
उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका प्रीलिम्स क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जो पेपर 2 है CSAT, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके you won't be finally able to attain any sort of merit, क्योंकि it is just a qualifying paper, आपको उसे बस क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर मेरिट लाना है, मतलब कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करके सिलेक्ट होना है, मेंस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होना है, देन यू नीड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर पेपर 1, दैट इज जनरल नॉलेज। And both of these papers are of objective types. Finally, moving forward, mains is descriptive, I have already explained. Subjects of mains examination. अब एक बार मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर करी एंड यू आर अपीयरिंग मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम विल हैव 9 पेपर्स टू बी रिटन। इसमें से जो फर्स्ट 7 पेपर्स यू माइट बी एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन्स, फर्स्ट 7 पेपर्स विल डिटरमाइन योर मेरिट कि आप मेंस क्लियर कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो मेरिट का कैलकुलेशन होगा पहले 7 पेपर के बेसिस पर होगा। 8th और 9th पेपर लैंग्वेज के पेपर हैं, एक रीजनल भाषा का पेपर है जो आपको चुननी होती है, कोई भी एक चुन सकते हैं, हिंदी, मराठी, उर्दू, XYZ। और पेपर 9 और या पेपर 9 इज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड पेपर 8 इज़ ऑफ इंग्लिश। एवरीबडी हैज़ टू कंपल्सरीली गिव दिस 2 पेपर्स। इसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स 25% स्कोर करने होते हैं। इससे ज़्यादा भी स्कोर करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 25% से कम स्कोर करें तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दिस 8th and 9th पेपर आर ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, but the first 7 papers are of the nature that they get you in the merit and increase your probability to clear mains. क्या क्या पेपर है? पेपर 1 consist of in mains, paper 1 consist of essay. You have to write about 2 essays of 1000 word each. जितने भी पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पेपर 1 से पेपर 7 are of 250 marks and the time given to write these papers is 3 hours each. अगर पेपर 1 essay, आपको 2 essay 1000 वर्ड के लिखने होते हैं and each essay is to be written and the total 2 essays have to be written in 3 hours time. पेपर 2 is of general studies 1 जिसे कहते हैं. It consists of subjects like history, geography, Indian society. अब हिस्ट्री में भी फिर सब डिविजन्स हैं, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री. इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी डिविजन्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी. सो in paper 2, that is general studies paper 1, these are the subjects which are asked and you have to write a descriptive answer, not objective. वो prelims में हो गया. फिर paper 3 is general studies paper 2. It consists of mainly Indian polity, that is things related to Indian constitution, governance, जैसे सरकार की योजनाएं. For example, one question which a sample question to understand कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में, लाइक कि क्रिटिकली एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नरेगा स्कीम. मतलब नरेगा स्कीम की एक आलोचना कीजिए, उसकी अच्छाइयाँ भी बताइए, उसकी खामियाँ भी बताइए और अंत में एक कंक्लूजन पे आप पहुँचिए. तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पेपर 2. Apart from it, one more section is in paper 2, that of international relation. भारत के विदेशी देशों से क्या संबंध हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या खामियां हैं, हमारे क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इनके बारे में. पेपर 4, that is general studies paper 3. It consists of mainly Indian economy, environment, science and technology, disaster management and internal security. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में पेपर
4 दैट इज़ जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर 3 कहलाता है, ये आते हैं। अभी तक हमने जो देखा पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 ये बहुत हद तक ओवरलैप करते हैं हमारे प्रीलिम से भी, लेकिन जो पेपर 5 है दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 4, इट इज़ एथिक्स पेपर एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन मेंस। कोई पोर्शन इसका वैसे प्रीलिम्स में नहीं है। एथिक्स मतलब दे आस्क यू सम थिंग्स इन ग्रे। ग्रे मीन्स जो कि पूरा काला भी ना हो और पूरा सफ़ेद भी ना हो। जैसे देयर माइट बी क्वेश्चन कि क्या किसी को इज टू मर्डर समबडी एथिकल। अब ये ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन है, इसमें आपको एथिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू मर्डर अ इनोसेंट पर्सन इज़ नॉट एथिकल, बट से to murder a terrorist, and this murder is done by a soldier in the larger national interest, कि देश के हित में किसी सोल्जर ने अगर किसी टेररिस्ट का मर्डर करा तो ये एथिकल है। कुछ इस तरीके के डिलेमा, इसकी थ्योरीज आप इसमें पढ़ते हैं। पेपर 6 और पेपर 7, अब ये जो दो पेपर हैं ये एक ही सब्जेक्ट के होते हैं। आपको 26 ऑप्शनल्स की लिस्ट में से एक सब्जेक्ट चुनना होता है। जैसे कुछ ऑप्शनल की लिस्ट मैं अगली स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, XYZ, ये 26 लिस्ट है ऑप्शनल्स की। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शनल चुनना होता है और इस एक ऑप्शनल पेपर के यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स पेपर 6 और पेपर 7 होता है। सब्जेक्ट एक ही है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। उसके आधार पर आप ये दो पेपर 6 और पेपर 7 देंगे। बेस्ड ऑन these 7 papers, how good you do, you will be able to clear the mains exam and appear in interview. So before just moving towards interview, I want you to have a look at the list of optional subjects. The most popular optionals which most of the students take in UPSC, I have highlighted in the orange color: geography, history, pol science, public administration and sociology. All these options are available at Kautil Academy also. So once you clear the main exam, you appear in interview. Interview is of 275 marks. Means what happens कि आपके जो मेंस के मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं, से मेंस में यू गेट 1000 मार्क्स विच इज़ वेरी वेरी हाई नंबर। सो अगर जो आपके मेंस के मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ये दोनों मार्क्स जुड़कर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है। डोंट बी अंडर दिस मिसकंसेप्शन, इस छलावे में नहीं रहना है कि कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू अपने आप में एक अकेला पैमाना नहीं है फाइनल सिलेक्शन का। इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे, से 275 में से आपने अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि 50 नंबर स्कोर करें, ये सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं कराएगा। ये 50 नंबर वुड बी एडेड विथ योर मेंस मार्क्स और फिर टैली बनेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो टॉप 1700 लोग होंगे, दीज विल बी सिलेक्टेड। तो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इंटरव्यू के मार्क्स प्लस मेंस के मार्क्स। और मेंस में कौन से पेपर्स के मार्क्स? जस्ट रिमेंबर पेपर 1 से पेपर 7, क्योंकि 8 और 9 पेपर तो आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। एक बार आप फाइनल सिलेक्शन, मान लीजिए कि आप टॉप 700 में आ गए, आपके मार्क्स या टॉप 1000 में आ गए। उस साल जितनी भी सीटें थी, अगर 1000 सीटें हैं तो आपको टॉप 1000 में आना है। 700 सीटें हैं उस साल के नोटिफिकेशन में, तो आपको टॉप 700 में आना है। मान लीजिए आप आ गए हैं, अब आपको कौन सी सर्विस मिलेगी? अगेन कई लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि UPSC से या तो IAS बनते हैं या IPS बनते हैं, या बहुत कुछ लोग IRS भी जानते हैं। No, there are a whole lot of services which UPSC offers. I'll be just displaying it on the next screen. मतलब डिपेंडिंग ऑन योर रैंक कि आप टॉप
700 में कहाँ पर हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक पर हैं और आपने आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस IAS भरी है तो इट श्योरली यू विल गेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेकिन मान लीजिए आप 700th रैंक पर हैं और आपने आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस IAS भरी है तो आपको IAS मिलना मुश्किल होगा, कोई और सर्विस आपको अलॉकेट होगी। मतलब आपकी रैंक और आपके प्रेफरेंस के अनुसार आपको यहाँ पर सर्विसेज अलॉकेट होती है। जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं इस एक एग्ज़ाम से, जो पॉसिबल सर्विसेज हैं आप गेन कर सकते हैं, आई हैव जस्ट डिस्प्लेड हियर, यू कैन हैव अ लुक। जनरली जो टॉप 100 रैंकर्स रहते हैं दे ऑप्ट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वंस यू गेट IAS, जो सबसे हमारे सामने सरकार का एक प्रमुख चेहरा, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो उभर कर आती है हमारे ज़िले के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। These district collectors are officers of this service only, IAS. Generally 100 से 200 के बीच में people get Indian Police Services, SP, SSP, IG, DIG, DGP. These are the people who belong to Indian Police Services. Next, generally 200 से 300 people opt for Indian Revenue Services, that is Income Tax Commissioner. इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी दो हिस्से हैं, एक है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IT इनकम टैक्स और एक है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज GST एंड कस्टम्स। तो जनरली 300 से 400 लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज GST एंड कस्टम्स को ऑप्ट करते हैं। अगेन जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जनरली 200 से 300 की रैंक, 100 से 200 की रैंक के लोग ये सर्विसेज लेते हैं। प्लीज़ ये कोई रूल नहीं है, ये एक जनरल ट्रेंड है जो नज़र आता है। There are cases where a person has got say second rank and he has not opted for IAS but opted for IPS. तो ये आपकी रैंक और आपकी प्रेफरेंस के आधार पर आपको कौन सी सर्विस मिलेगी ये तय होता है। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आपने विदेशी राजनयिकों के बारे में सुना होगा, जो भारत के राजदूत होते हैं, इंडियन एम्बेसडर्स, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशों में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, ही वॉज IFS ऑफिसर। वो इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना में। IFS से वो रिटायर हुए, देन ही जॉइंट पॉलिटिक्स। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी अपॉइंटमेंट इसी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। ऐसे ही एक और सर्विस है, यू माइट हैव हर्ड, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सरकार के खर्चे और आमदनी का ऑडिट करता है। दिस सर्विस इज़ ऑल्सो अलॉकेटेड थ्रू UPSC, यही एग्ज़ाम के थ्रू। ये बस एग्ज़ाम एक ही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इसमें आपकी रैंक क्या आती है फाइनली इंटरव्यू के बाद, उस और आपका प्रेफरेंस क्या है, इस आधार पे आपको इन सभी सर्विसेज में से कोई एक सर्विस अलॉकेट हो जाएगी। तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दीज सर्विसेज। ऐसे ही जस्ट वन मोर आई विल मेंशन, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, IRTS जिसे कहते हैं। दीज आर दी टॉप मोस्ट रेलवे अथॉरिटीज़ लाइक जनरल मैनेजर्स और DRM ऑफ रेलवेज, द टॉप बॉसेज ऑफ रेलवेज। यही एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। अब एग्ज़ाम के बारे में समझ लिया, सो आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली टेल यू अबाउट हाउ कौटिल अकेडमी कैन हेल्प यू आउट in achieving your dream to be a civil servant. First thing जो कि किसी भी कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इट्स टीम, कौन फैकल्टीज़ हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एट, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ टीचिंग हियर एट कौटिल अकेडमी। वी हैव पीपल फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस, वी हैव डॉक्टर्स, we have engineers from NIT, from Vellore Institute. We have people who have appeared at least once in UPSC interview, means they have cleared their prelims, they have cleared their mains, and they have appeared in interview. Most of our faculties have an experience of having been appeared in UPSC interviews. So here is a brief qualification and names of our faculty. You can have a look and pause the video and have a look. We have people also from IITR Lucknow, research scholars.
We have people who have previously worked with multinational companies. We have people from Symbiosis University. We have people who are NET JRF qualified. So please have a look at our extremely qualified team of faculties which would be taking up the course of UPSC here. In our prelims online course, what we will specifically offer? There will be online lectures daily. It will be 3, 4 or even 5 lectures at times. On a weekly basis, we would be conducting a live doubt clearing session. On a online platform, we would be providing digital reading material. There will be current affairs and newspaper discussions taken by रिस्पेक्टिव फैकल्टी. जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स के लिए असाइंड है वो आपका डेली डिस्कशन लेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. कोई न्यूज़ आई है तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट आवर prelims part of UPSC by December 2020. And in between, as and when lockdown gets opened, we would convert this online class to offline class. If you join or if you convert this online class to offline class and convert this prelims course into mains course also, what additional things we would be offering? We would be offering a prelims test series that will be starting from January 2021. We would be offering you optional subjects. A list of optionals I have given. You can choose your optional, and I have highlighted the most popular optionals which are also offered at Kautil Academy. We would be beginning with your optional subjects. Apart from this, we will have mains answer writing classes in offline mode in classroom sessions. For those, this I am telling for those who get converted to mains classes or offline classes. So these are some things which we would be offering in online classes and in offline value addition classes. For academic queries, if you have any queries after this session also, you can directly call me. My number is flashed on the screen behind me or sideways. If you have any academic query, feel free to call me. So this is it about our brief introduction of UPSC exam process. Thank you.